your sports science classes of 6-week certificate course. Today we will be talking about sports. We will talking about nutrition. In nutrition there are two topics that will be covered. दो topics रहेंगे आप लोग के nutrition के अंदर इस course में. Today we will talk about general healthy eating habits that can be applied for a normal population person also and for athlete also. And your next class that will be taking place that will be specifically related to sports nutrition. Okay, and the PPT everyone is asking, we will be sharing the PPT in your groups. जो है PPT आप लोग का ग्रुप्स में हम लोग शेयर कर देंगे क्लास के बाद. So today we will discuss about healthy eating habits. What all we will cover about is what are the components of healthy diet. Healthy diets में क्या क्या चीजें हैं that are important. How you can start eating healthy. How you can choose healthy food items that we will discuss. Do's and don'ts. What you should not eat. What should eat. What kind of practices you should follow. That we will discuss. Then we will discuss a sample healthy plate. When you are eating a meal, what kind of plate should be there. Then, so to start with, why the healthy eating is important, because over a period of few decades, कुछ पिछले कुछ 40-50 साल से हमारा जो eating habit है that has changed a lot. Okay, earlier we used to eat more of home cooked foods. Now we are consuming more of packed food items, processed food items, because our lifestyle has changed. Our life is very fast now. We don't spend much on cooking and everything. So apart from that, what is happening? Our physical activity is reduced. हमारा जो पहले हम लोग जितना physical work करते थे, वो physical work जो है कम होता जा रहा है. So because of these two things, what is happening? There are different kind of diseases, new kind of diseases that are coming up in the recent years. तो आप लोगों ने देखा होगा काफी सारी डिजीज हैं, जैसे शुगर है, डायबिटीज जिसको हम बोलते हैं, हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर बोलते हैं उसे, ठीक है, आपकी हार्ट की प्रॉब्लम्स, कैंसर, दीज काइंड ऑफ थिंग्स जो है उनका प्रेवलेंस that has been increased. So ये सारी जो diseases हैं इनको हम non-communicable diseases कहते हैं. And non-communicable disease क्यों कह रहे हैं? Because ये आपको infection से नहीं होती है. जैसे COVID was there. COVID is an infectious disease. ये आपको किसी दूसरे person से हो जाएगा. But these are basically related to your lifestyle. आपका लाइफस्टाइल अच्छा नहीं है, आपका खाना पीना, आपका फिजिकल एक्टिविटी अच्छा नहीं है. सो एंड दीज डेवलप ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम. ऐसा नहीं है कि 2, 4, 5 दिन में डेवलप हो गया. इनके डेवलप होने का रीजन जो है दैट मे बी लाइन 10, 15 साल, 20 साल पुरानी आपकी जो खाने पीने की गलत हैबिट्स हैं उनकी वजह से इस तरीके की डिजीजेस जो है वो जनरली होती हैं. सो if we talk about the components of your healthy eating, कि क्या क्या चीजें हमें मेन ध्यान में रखनी है. So there are 3 major things. One is nutrient density. अभी हम आगे बात करेंगे nutrient density क्या है. इसको हम we can call a kind of quality of food also. Then the quantity and the timings. So 3 things we need to look into कि आप जो food खा रहे हैं वो हेल्दी है या नहीं है, उसको आप सेलेक्ट कैसे कर रहे हैं. देन इवन इफ इट्स हेल्दी, उसका क्वांटिटी आप कितना खा रहे हैं. और तीसरी चीज है कि आप सही टाइमिंग पे खा रहे हैं या नहीं खा रहे. सो वी विल टॉक अबाउट द न्यूट्रिएंट डेंसिटी ऑफ फूड. न्यूट्रिएंट डेंसिटी क्या है बेसिकली. सो यहाँ पे एक आपको पिक्चर दिख रहा है. इट्स बेसिकली यू कैन सी एक वेइंग स्केल पे बिस्किट है और एक वेइंग स्केल पे फ्रूट्स है. सो
basically what is nutrient density? Nutrient density is the amount of nutrient, specifically your vitamins and minerals per calorie of food. Okay, so अगर आपको किसी फूड आइटम से मान लीजिए 100 कैलोरीज फूड मिल रहा है, 100 कैलोरीज एनर्जी मिल रही है, तो उसमें कितना विटामिन्स और मिनरल्स है, दैट डिसाइड्स कि आपका फूड कितना न्यूट्रिएंट डेंस है. सो इफ यू टेक similar weight of your biscuits or cookies and similar weight of fruits and vegetable, मान लीजिए हमने 100 ग्राम बिस्किट लिया और 100 ग्राम fruits and vegetable लिया, then in 100 ग्राम of biscuits you may get more of energy. आपको एनर्जी काफी ज्यादा मिलेगी. उसके अंदर आपको कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, ये दोनों चीजें जो है बहुत हाई क्वांटिटी में होंगी. एनर्जी भी आपको बहुत ज्यादा मिलेगी. बट if you compare to similar weight of fruits, so similar weight of fruits में आपको कैलोरीज तो कम मिलेगा, बट जो विटामिन्स, मिनरल्स हैं, उनकी मात्रा आपके शरीर को ज्यादा मिलेगी. So which one is more nutrient dense? If we say the fruits and vegetables are more nutrient dense, मतलब कि इनमें न्यूट्रिएंट्स की मात्रा जो है, even if you compare with other kind of food, unhealthy food, so उनमें विटामिन, मिनरल, स्पेसिफिकली जो आपके हेल्थ रिलेटेड कंपोनेंट्स हैं, okay? जो आप को रोग, डिजीज से प्रोटेक्ट कर रहे हैं, और that are important for different kind of activities, different kind of metabolic activities in your body. So उनका अमाउंट जो है, if it's more, then the food item is more nutrient dense. So हम लोग कैसे select कर सकते हैं nutrient dense food items, that we will first talk about. So generally अगर हम हमारे फूड को देखें, if we look at the food around us, जो हमारे पास food available है, so we can categorize the food items in different groups. Okay, so we will talk about in the upcoming slides how you can select the healthy food items in each food group. Okay, so first we will see what are the different food groups. So we have first cereals, and we can combine here millets also, cereals and millets. So आपके अनाज और जितना भी आपका मोटा अनाज है वो इस कैटेगरी में आएगा. Then we have pulses and legumes, जितनी भी आपकी दालें हैं. Then legumes है like आपके राजमा, छोले, चावल, राजमा, छोले, then लोबिया. ठीक है, so these kind of things come under legumes category. So जितनी भी दालें और legumes हैं, that makes one category of food. Then we have fruits and vegetable. Everyone knows what are fruits and vegetable. Milk and milk products, we have one category. In this we have milk, कर्ड, पनीर, सो चीज, जितनी भी चीजें हैं वो सारी मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स में आती हैं. देन वी हैव ए कैटेगरी ऑफ एग, नॉन वेजिटेरियन फूड आइटम. देन वी हैव नट्स एंड ऑयल सीड्स. नट्स एंड ऑयल सीड्स में बेसिकली क्या क्या आएगा, जितने भी आपके ड्राई फ्रूट्स हैं, जैसे अखरोट, बादाम, काजू, इस मूंगफली. देन ऑयल सीड्स, डिफरेंट काइंड ऑफ, आजकल आपने देखा होगा मार्केट में काफी सारे बीज मिलते हैं अलग अलग तरीके के, जैसे अलसी का बीज है, तिल है, pumpkin seed, watermelon seed. So all oil seeds, nuts and oil seeds come under this category. Then we have category of fats and oils. जितने भी आप ऊपर से ऐड करने वाला फैट यूज कर रहे हैं उसकी कैटेगरी है ये. जैसे हमारा घी है, बटर है, देन आपके रिफाइंड ऑयल है, आपका वनस्पति घी है. सो सारी चीजें इस कैटेगरी में आएंगी. Then we have sugars and beverages, like you have जो आप चीनी खा रहे हैं, then you have गुड़, शक्कर, खांड, all these things come under sugar category. And beverages, again those beverages which are quite sweet, जिनमें चीनी या sugars का use ज्यादा हो रहा है, so those come under this category. So we will briefly talk about for each category.
like how we can select in each category the nutrient dense food item and how we can avoid the unhealthy food items in the each category. So first talking about the how we can choose the nutrient dense cereals and pulses. आपका अनाज है, मिलेट्स, दालें, उनमें हम कैसे ज्यादा न्यूट्रिएंट वाले फूड आइटम सेलेक्ट कर सकते हैं. So what we need to focus is we need to consume more of cereals that is less processed. प्रोसेसिंग का क्या मतलब है? इंडस्ट्री में किसी भी फूड आइटम में कोई भी चेंजेस आ रहे हैं, किसी भी तरीके का फिजिकल चेंज जब आ रहा है, सो दैट इज नोन एज प्रोसेसिंग. एक सिंपल एग्जांपल प्रोसेसिंग का आई विल गिव यू कि जैसे हम लोग गेहूं लेते हैं. ओके, सो गेहूं इज ए होल व्हीट. ठीक है, पूरा साबुत अनाज है गेहूं. जब आप उसको मशीन में थोड़ा सा तोड़ेंगे सो वो दलिया बन जाता है. उसको और बारीक आप पीसेंगे तो वो आटा बन जाता है, और उसको बहुत ज्यादा बारीक पीसेंगे तो वो क्या बन जाता है? मैदा. सो जितना बारीक हम पीस रहे हैं उतना उसमें से न्यूट्रिएंट्स जो हैं बाहर निकलते जा रहे हैं, जो आपकी हेल्थ के लिए अच्छे हैं. काफी सारे विटामिन्स, फाइबर, काफी सारी चीजें हैं जो आपकी हेल्थ के लिए अच्छी होती हैं, वो उसमें से बाहर निकलती जा रही हैं. ओके, सो जितना हम मोटा अनाज खाएंगे, जितना हम कम पिसा हुआ, कम प्रोसेस्ड फूड खाएंगे, सो वो हमेशा आपको उसमें न्यूट्रिएंट्स की मात्रा जो है आपको ज्यादा मिलेगी. ठीक है, देन उसके अलावा जितना भी हमारे मिलेट्स हैं, अलग अलग हमारे जो रीजन्स हैं, साउथ में, ईस्ट में, नॉर्थ में, वी हैव डिफरेंट काइंड ऑफ लोकली अवेलेबल मिलेट्स. सो उनका इस्तेमाल करना इज बेनिफिशियल. उनके अंदर अगेन न्यूट्रिएंट्स की मात्रा जो है गेहूं से ज्यादा रहती है. देन इफ यू आर राइस ईटर, अगेन यू नीड टू गो फॉर अनप्रोसेस्ड राइस, जिसमें बहुत ज्यादा पॉलिशिंग नहीं की हुई हो, जिसमें से बहुत ज्यादा ऊपर की लेयर्स रिमूव नहीं की हुई हो. सो ऐसा राइस वी नीड टू कंज्यूम. ओके, अगर हम उसके कंपैरिजन में देखें, ऐसे फूड आइटम जिनमें न्यूट्रिएंट्स तो कम होंगे बट एनर्जी आपको उससे खूब अच्छी मात्रा में मिलेगी, जैसे मैदा से बनी हुई चीजें हैं, वाइट ब्रेड है, पास्ता है, देन रिफाइंड या बासमती राइस है. उसके अलावा अगर आप फ्राइड स्नैक्स तो बहुत मिलेगी, बट विटामिन, मिनरल्स और अदर हेल्थ कंपोनेंट्स जो है उसमें वो बहुत ज्यादा नहीं होगी. सिमिलर इज फॉर आपकी जो दालें हैं, लेग्यूम्स हैं. वी कैन कंज्यूम लेग्यूम्स इन द टर्म्स ऑफ हम उनको स्प्राउटिंग करके खा सकते हैं. वी कैन फोकस मोर ऑन होल छिलके वाली दाल एंड सैलेड्स की फॉर्म में उनका यूज जो है वो कर सकते हैं. बट व्हाट वी नीड टू अवॉइड द प्रोसेस्ड आइटम्स. अगेन दालों वाले बहुत सारे फ्राइड आइटम्स, स्नैक्स वगैरह बनते हैं, दैट वी नीड टू रिड्यूस the intake of those kind of food items. Then second category, milk and milk products. Milk and milk products में mainly what is the main concern is basically your fat. Okay, so what milk basically have is there are three major things that milk is rich in. That is, we have proteins, fats and calcium. Okay, so जब हम लोग एक बहुत अगर भैंस का दूध ले रहे हैं या गाय का फुल क्रीम दूध ले रहे हैं, सो उसके अंदर फैट का कंटेंट जो है वो काफी ज्यादा रहता है, और हमारे शरीर को उतना ज्यादा फैट का रिक्वायरमेंट जो है वो नहीं रहता. दैट्स व्हाई वी से कि अगर आप बहुत अच्छी मात्रा में मिल्क का इस्तेमाल कर रहे हैं, देन वी नीड टू कट डाउन द फैट्स ऑफ द मिल्क. सो हाउ यू कैन कट डाउन? अगर आप पैक्ड फूड आइटम कंज्यूम कर रहे हैं, पैक्ड मिल्क कंज्यूम कर रहे हैं, then you can go for the yellow packet जिसके अंदर काफी कम फैट जो है वो रहता है. इसका प्राइस भी कम रहता है दूसरे दूध से. देन स्किम मिल्क इज देयर जिसके अंदर बिल्कुल भी फैट नहीं होता है. इफ यू आर यूजिंग मिल्क जो आपका दूध वाला वेंडर देके जाता है, इन दैट केस व्हाट यू कैन डू इज आप अपने मिल्क को एटलीस्ट 10-12 घंटे फ्रिज में रख सकते हैं. उसके ऊपर जो मोटा लेयर क्रीम का है, दैट यू नीड टू
remove before consuming the milk. Another important thing is कई बार क्या होता है कि हम लोग दही, पनीर, लस्सी ये सब चीजें सारी बाहर की ला रहे हैं, बट अगर आप इसी को अपने घर पे बनाएंगे यूजिंग द मिल्क जिसका आपने क्रीम रिमूव किया हुआ है या फिर जिसमें फैट का कंटेंट थोड़ा कम है, देन इट विल बी मोर हेल्थियर. सो इफ यू लुक एट फुल क्रीम मिल्क, फैलो का मिल्क में बहुत ज्यादा फैट कंटेंट जो है वो रहता है. पैक्ड दूध की बात करें तो जो आपका ऑरेंज रेड कलर का पैकेट आता है उसके अंदर फैट जो है वो सबसे ज्यादा रहता है. देन वी हैव प्रोसेस्ड चीज वगैरह है. देन अगर आप बाहर का बना हुआ पनीर, कर्ड वगैरह ले रहे हैं, अगेन दैट इज जनरली मेड अप ऑफ फुल फैट मिल्क. खोआ है, आइसक्रीम्स, डेजर्ट, सो इन सब के अंदर फैट का कंटेंट जो है वो बहुत ज्यादा हाई रहता है.